اور اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر جابر حسین سے کہ ڈاکٹر جابر صاحب آپ تشریف لائیے اور گفتگو بھی کیجیے اور یقیناً آپ میرے اچھے سامعین السلام علیکم۔ یہ جو دعا منتہا نے انفرادیت اور روایت کو بڑی خوبصورتی سے ملایا ہے، اور جب انفرادیت روایت میں ضم ہوئی روایت کی خوبصورتی بڑھ گئی اور یہ اور آگے بڑھ گئی۔ میں اس پر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے پاس آج ایک خوشخبری ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک تعریف ہے۔ میں کوشش کروں گا، میں تھوڑا سا بدقسمت اس لیے ہوں کہ میں اس طرح سے شاعر نہیں ہوں، لیکن میں اتنا خوش قسمت ضرور ہوں کہ میں آدھا شاعر ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں، فیلنگز میرے اندر ہیں اور ان فیلنگز کو نام آپ سب لوگ دیتے ہیں، یعنی شاعر۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر دانش عزیز صاحب، آپ کے حوالے سے آج میں بڑی حیران کن بات لوگوں کو بتاؤں گا جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج یہاں بلایا۔ اردو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اردو لغت آن لائن ہے، آپ سب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کے 22 والیومز ہیں، لاکھوں الفاظ ہیں، لیکن اس میں سے ایک لفظ جو ابھی بھی جس کے معنی ویسے ہیں، اور وہ شکریہ ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور ڈاکٹر جواد جعفری صاحب سے میری 2009 میں پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہم ایک ایسا شعری تلازمہ بن گئے کہ پھر ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ہم دونوں جب ساتھ ہوتے ہیں ہم دونوں ہی بامانی ہوتے ہیں۔ بہت بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ خوشخبری یہ ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، میرا میدان لینگویج ہے، میں زبان پڑھاتا ہوں۔ آج سے کچھ ایک لمبا سال پہلے کی بات ہے، کچھ بچے میرے پاس آئے ایم فل پی ایچ ڈی کے، لسانیات پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے بڑا لمبا لیکچر انہیں دیا، پر مجھے لگا کہ وہ میری بات سے قائل ہو جائیں گے، لیکن وہ پھر مجھے جب وہ چپ ہو گئے اور میں بھی چپ ہو گیا، میں نے پوچھا کوئی سوال سمجھ آئی ہے؟ تو آپ کو پتا ہے ایک اسٹوڈنٹ اٹھا، اس نے کہا کہ سر باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن کسی شعر کے ذریعے سمجھائیں تو ہمیں بات زیادہ سمجھ آئے۔ پاکستان میں بہت سارے سیاستدان، بہت سارے اسکالرز، بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ لوگ شعر کی بات مانتے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ یہ کیسی خوشخبری ہے اس وقت کہ لوگ، اس وقت آج کا نوجوان شعر کی بات مانتا ہے، استاد کی نہیں مانتا۔ میں استاد ہوں، میں ان سے یہ بات بہت مرتبہ اگر کہوں کہ یہ کام کریں وہ کریں، وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا کوئی شعر سناؤ۔ کیا بات، شعر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نہیں پہنچ دے۔ جی آپ سب لوگوں کو مبارکباد۔ اور ڈاکٹر دانش عزیز صاحب، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، میں نے اس سے کہا کہ اس کا کوئی لینگویج کا ایشو تھا، تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے اس سے بات چل، اسے کوئی اپنے بارے میں کوئی شک تھا، ہی واز اسکیپٹیکل، تو وہ ڈاؤٹس میں جب گھرا ہوا تھا، تو پھر میری بات جب نہیں سمجھ آئی تو میں نے پھر آپ کا شعر اسے سنایا، دانش میرے یقین کو تشکیق کھا۔ جب میں نے اسے یوں کہا، پہلے میں نے اسے کہا کہ دانش میرے یقین کو تشکیق کھا گئی، کہتا ہے نہیں سر۔ پھر جب میں نے اسے یوں کہا کہ دیکھو تم شکوک میں گھرے ہوئے ہو، جب بھی کوئی سفر شروع کرتے ہیں کچھ پڑھنا لکھنا لینگویج سیکھنا ایمان کے ساتھ چلا کرو۔ اس نے کہا سر پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے جب آپ کا شعر اسے سنایا نا کہ دانش میرے یقین کو تشکیق کھا گئی، مجھ کو دعا کی عین پہ نقطہ دکھائی دے۔ جب نے یہ کہا
तो उसने कहा कि सर मुझे लगता है मेरे अंदर अंदेशे हैं। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा सर मुझ में एतमाद नहीं था, लेकिन आज ये जब शेर मिला तो मुझे पता चल गया मेरे अंदर क्या नहीं है। यानी आप ये देखिए कि आपका शेर मुआलिज बन गया, जिसने तशखीस की और जिसने उसके अंदर की कैफियत को वो नाम दे दिए जो कोई उस्ताद, कोई किताब, कोई दर्स, कोई सरमन, कोई वाइस, कोई और चीज नहीं दे सकी, जो आपके शेर ने दे दिया। आपकी बहुत अच्छे। तो जहां तक बोलियों की बात रही तो मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर लोग शेर को इतना मानते हैं, और आप देखिए कि इस वक्त अभी तक जितने शायरों को हमने सुना, मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि वो कौन से अशार थे जिन्हें ज्यादा दाद मिली, तो वो अशार थे जिनमें शायर इस माशरे का बयान कर रहा था। मुझे लगा कि आज के दौर में रुमानियत है, होनी चाहिए। शायर शेर से एक सुनने वाला 4 तरह के रिश्ते बना बैठा है। एक लिसानी रिश्ता है जिसमें कोई ऐसे लफ्ज उसे सुनाए जाते हैं जो उसने किसी दादी नानी किसी लुगत में पढ़े तो उन लफ्जों से कोई याद आ जाता है। जैसे नासिर काज़मी ने कहा था, जब सावन रुत की पवन चली तो याद आए। इसीलिए शायर के मुंह से निकलने वाला लफ्ज कोई लफ्ज या उस लफ्ज को कोई बोलने वाला याद करवा देता है। ये लिसानी रिश्ता है। दूसरा जमालियाती रिश्ता होता है, जो शायरी का कैडेंस है, जो रिदम है, जो बहर है। यानी बहरें सुनते हुए अगर आप तबले की कैरवा और दादरा भी ढूंढने लगे तो इसका मतलब है आप शायरी से जमालियाती रिश्ता भी बना बैठे हैं। और एक शायर एक शेर से एक माशरत, एक नफ्सियाती रिश्ता होता है। और मैं आपको बताऊं कि आज का नौजवान जब ये महसूस करता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ शायर ने उसको लफ्ज दे दिए हैं, तो वो खुश हो जाता है। आज देखिए ना, आज का जो शायर है, और मैं बड़ा खुश हो रहा था बैठा हुआ यहाँ पर कि जिन अशार को ज्यादा दाद मिली वो वही थे कि जिसमें शायर ये बता रहा है कि वो भी इस माशरे की किसी न किसी खराबी पे दुखी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है, और यही खुशखबरी एक जिम्मेदारी लेके आती है। और वो जिम्मेदारी ये है कि हमारे अशार में रोमानियत होनी चाहिए। बिल्कुल, वो रिश्ता बड़ा जरूरी है। जैसे हफ्ते में एक इतवार जरूरी है, इसी तरह से जिंदगी में रोमानियत भी बड़ी जरूरी है। कभी न कभी टोपिया में जाना चाहिए, लेकिन वापस आ जाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि खुशखबरी है। और मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप लैंग्वेज पे, लिसानियात पे, लफ्ज पे, उसकी मानवियत पे ये बता रहे हैं, यूं बोल रहे हैं, तो कोई आप कोई बोली, कोई शेर में बता सकते हैं। और फिर मैंने उसे एक बोली सुनाई कि चाहे बोलन दा जे तुसी सीखना घड़ी मूड़ी बोलिया करो। समझ आ गई मुझे। यानी मैं अंसारी साहब से पूछ रहा था, मैं शायर नहीं हूँ, मेरी किताब नहीं है, मुझे गजल कहनी नहीं आती, मेरे पास किसी शेर का कोई अपना मिसरा नहीं है, तो मुझे क्यों बुलाया। फिर बाद में मुझे जब मेरी वालदा की वो बात याद आई तो मुझे समझ आ गई कि मुझे क्यों बुलाया। यानी आपको मैं बताऊं कि इस हवाले से मैं आपसे शायद आप इतना ना सही, आपसे थोड़ा सही, थोड़ा या कहीं ज्यादा सही खुशकिस्मत हूं कि मुझे बचपन में तसल्लियां शेरों के जरिए मिली। मैंने अपनी वालदा से कहा कि पोठवारी जुबान में, चूंकि मेरा ताल्लुक गुजर खान से है, तो अपनी वालदा से मैंने कहा मैं पटवारी का टेस्ट भी, चूंकि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ तो मुझे लगता है कि सारी जुबानों की सुलह होनी बड़ी जरूरी है। तो सारे जो लहजे जब इकट्ठे मिल जाए तो बड़ा मजा आता है। मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा कि मुझे जब ये पता चला कि ये बच्चा देख नहीं सकता और शुरू से ख्वाहिश ये थी कि मैंने अंग्रेजी में कुछ करना है और अंग्रेजी पढ़ानी है, तो बचपन में एक डर था, खौफ था। आपको पता है कि हमारे माशरे में वकील कम और जज ज्यादा है, ठीक है जी, हमारे हर जगह पे जज है, हर जगह। तो मैंने अपनी वालदा से कहा पटवारी जुबान में, मैंने उनसे कहा कि मैं जिसले बाहर जासा तो कोई तकसीम को मेरी क्या आखसी तो मैं करूँ ना निकली सकना। मतलब ये था कि माशरा जजों का है,
लोग चलने पे जज करते हैं, लोग तलफ्फुज पे जज करते हैं, लोग जरा सा आप गलती से नाराजगी कह दे तो साथ बैठे वाला को गुर्दे में कोनी मार के कहेगा देखो उसने नाराजगी था, उसने नाराजगी कह दिया, और उससे वो सारा जमालियाती मजा देने से कासिर रहेगा, वो खत्म ही कर देगा, वो कहेगा ये तो नाराजगी कहता है। इस तरह से जजिस में हम रहते हैं। तो मैंने वालदा से कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, लोग जज करेंगे कि इसकी बिनाई नहीं है, ये बच्चा है तो ये गिर जाता है, इसको कौन पकड़ता है। तो मेरी वालदा ने मुझे जो तसल्ली दी वो एक बोली में दी थी। तो उस वक्त से मुझे लगा कि मेरा शेर से जमांदरू ताल्लुक है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम बाहर जाओ, डोंट गेट स्कैर्ड, डरो ना लोगों से। तो जब उन्होंने देखा नहीं समझ रहा तो फिर उन्होंने मेरे वालिद को नहीं बुलाया, किसी मौलवी को नहीं बुलाया, किसी स्कॉलर को नहीं बुलाया इसे समझाओ, किसी साइकोलॉजिस्ट को नहीं बुलाया कि इसकी काउंसलिंग करो। उन्होंने मुझे बोली सुनाई, उन्होंने अपनी याददाश्त जो उनकी, जैसे आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जब बंदा रिटायरमेंट के बाद या बड़ी जो बूढ़ियां होती हैं वो पेंशन की कॉपी अपने दुपट्टे में ऐसे बांध के रखती थी पहले। इसी तरह से सियानों की गुट्ठी में बोली होती है, शेर होता है, कोई मिसरा होता है। तो उन्होंने मुझे कहा, जब उन्होंने देखा कि ये नहीं समझ रहा, उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा, उन्हें बोली सुनाई। तो बोली थी, दुख निक्के निक्के बन जांदे मरज़ां, दुख निके निके बन जांदे मरज़ां, जे इन्हां दा ना संग कुटिए। दुख निके निके। और फिर इसे बाद में जब मैंने तलंग राग में गाया तो वो यूं था, ओ दुख निके निके बन जांदे मरज़ां, हो दुख निके निके बन जांदे मरज़ां, जे नादाना संग कुटिए। ये बोली मैंने सुनी तो मुझ में तसल्ली आ गई। और फिर जब आपको पता है आप में तसल्ली आ जाती है तो इत्मीनान आ जाता है। बताने का मकसद ये था कि जो दिलासा शेर दे सकता है ना, जो गाइडेंस शेर फराहम कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई एकेडमिया का बंदा नहीं कर सकता, कोई 3 घंटे का लेक्चर नहीं कर सकता। डॉक्टर जवाद जाफरी साहब यहाँ बैठे, ये अमन के सफीर हैं। और डॉक्टर साहब आप जितना काम कर रहे हैं, बड़ी ख्वाहिश है। आपको पता है कि उर्दू जबान पढ़ने वाले लिखने वाले ये समझते हैं कि अमन एक इस्म है, यानी एक नाउन है। डॉक्टर साहब जितना काम आपने किया है ना, उसके बाद दुआ करता हूँ कि अमन एक वर्ब बन जाए।